say good morning or good evening. I don't know. I'm just still confused because time is good evening, but I think it's the time to wake you up. So I will be talking not more on the data, but just see how I can do more. It will be a mix. नहीं बात करेंगे विल सी क्योंकि सबने कल से लेकर आज तक सबने आपके बेनिफिट के लिए बात किया है तो हम भी थोड़ा इंटरेक्टिव इसको रखने के इंटरेक्टिव रखते हैं और वी स्टार्ट तो सब लोग रिटेल बिजनेस से तो फैमिलियर है राइट एवरीवन इज फैमिलियर बैक साइड जस्ट फॉर अ सेकंड कैन यू कीप वाइट फॉर वाइट रिटेल बिजनेस सब लोग फैमिलियर है राइट right everyone is familiar anybody is familiar with Epson right Epson no can I ask one question what is the full name of Epson anyone can guess what is the full name of Epson or the any guess no anybody have heard about the watch called Seiko watches right Epson का पूरा नाम Seiko Epson Corporation तो Seiko watch part of the Epson only so first we have launched the watch only then the printer form generation was happened and company name became Seiko Epson Corporation so this is the today's session so we will not follow this session because already lots of data we have done so before we start I will introduce two members are also we have with Shetty he is a pre-sales head he support the backend in terms of software integrations or whatever the changes like Vikash required and Vinodra will be a right person who will help to develop the SDKs and the application part. We have a Vipin also, he is a part of the sales who is based in Mumbai. So we will start. So we are the 1 trillion company which have 23 manufacturing plants and 80 group companies. So we are based a Japanese company. And one question I'm asking, anybody heard about the SDG? What is SDG? It's very popular word and Mr. Prime Minister, Indian Prime Minister initiated for Indian countries, for the people of the country. Sustainable Development Goals, right? Now everyone knows. What is Sustainable Development Goals? Anyone? Sustainable Development Goal is related to environment. Back to earth, what you are giving for your next generation, what you are saving like water, power, energy and many things. So Epson is the first company who adopted these 17 Sustainable Development Goals to manufacturing their products. So our goal was that any product what we are manufacturing, it should not harm the environment. If it is harming, it should be less. So we adopted a 17 goals to manufacturing product करने के लिए जिसमें से एक जो पैरामीटर हमने डिसाइड किया है कि 1.5 डिग्री जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दैट विल बी रिड्यूस 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक और 2050 तक 2050 तक Epson be a first company who will be carbon negative company globally which will not harm to the environment. So these are the various product lines. Epson is in home, Epson is the entertainment, Epson into supermarket retail, Epson into digitization, how you can digitize your documents on the portal. People are talking about the upload the data into server or the cloud, but how you will scan. We have the scanners also, you can digitize the documents. So we will not cover all the entire product, we will cover only which is relevant to you. So it will be more easy, we will be not more into technical. So we will talk about what are the benefits, what we can provide you. So you guys are expert in this. So I will not talk anything about retail. तो आप लोग इसके भारती हो. But एक जो बहुत सारे जो सर्वे रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत सही कहा है कि जो 3 साल में आने वाले में जो रिटेल होने वाले जो आज तक 20 साल में भी नहीं हुआ. तो रिटेल will be drastically be changing in the coming next 3 years with the support of the global leaders. Indian industry leaders are there and ministries are there, so they are supporting to develop the country for the retail market. So coming 20 years में जो नहीं हुआ वो 3 साल में होने वाला है रिटेल के लिए.
तो किसी ने सोचा है रिटेल में बिल प्रिंटर सब लोग यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है तो बिल प्रिंटर है। किसी ने सोचा कि एक बिल प्रिंटर क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या बेनिफिट है रिटेल प्रिंटर का, बिलिंग प्रिंटर का? हाँ, एक हो सकता है, राइट राइट। सो मोर ऑफ, जो आप बोल रहे हैं कि मोर ऑफ एक बिल प्रिंटर जो है वो आपको एक सुविधा दे सकता है ऑपरेशन स्मूथ करने के लिए, करेक्ट? इससे ज़्यादा बिल प्रिंटर कुछ नहीं कर सकता। पर मैं ये कहूँ कि इसके अलावा भी बिल प्रिंटर आपको ऑपरेशन कॉस्ट जो खर्चा होता है मॉनेटरी टर्म्स में भी आपको हेल्प कर सकता है। आप बिलीव करते हो, नहीं करते? कुछ बेनिफिट नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में, राइट? एग्री? सब लोग मानते हो कि बिल प्रिंटर लगाने से स्टोर का कोई फायदा नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन एप्सन प्रिंटर? एप्सन पॉस प्रिंटर खरीदने की जरूरत ही नहीं है जब वो, हाँ, तो आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन कि एप्सन पॉस प्रिंटर में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करें? आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे सस्ते प्रिंटर्स अवेलेबल है, 5000, 6000, 7000, मतलब 6-7 हजार में तो आपको आसानी से कोई भी प्रिंटर मिल जाएगा लो कॉस्ट। क्यों एप्सन में डालें 10-12 हजार? करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। तो 6 से 7 रीजन है, मैनी रीजन, हम 5 से 6-7 रीजन को टच करेंगे, जिसको आपको थोड़ा बहुत रियलाइज करेंगे कि यस, थोड़ा बहुत अफोर्डेबल प्रिंटर है, और जो भी आप 7,000 रुपये आप जो प्रिंटर में ले रहे हो उससे सस्ता एप्सन ही है। तो पहला पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो है रिलायबिलिटी। कोई भी प्रिंटर जो मेंशन किया है IP54 रेटिंग, IP54 रेटिंग यू विल नॉट गेट जस्ट लाइक दैट। मतलब आप IP54 रेटिंग ठीक है, आपके लिए कोई काम का नहीं है कि इससे मुझे क्या करना है, प्रिंटर ही तो है, बिल प्रिंट कर देगा। पर IP54 रेटिंग के लिए हमें ये सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है जो कि ऑथराइज बाय दी एजेंसी, दे कैन नॉट बी डन बाय दी अस। जब प्रिंटर एक मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो जैसे 6 से 8 महीने की प्रोसेस होती है प्रिंटर को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो टेस्ट होता है पानी का, वाटर प्रूफ है कि नहीं है, प्रिंटर चलता है कि पानी में कितना सस्टेनेबल होगा। ये प्रोडक्ट आपके रिटेल से रिलेटेड नहीं है क्योंकि पॉकेट प्रिंटर वगैरह नहीं है, बट इफ यू गो वॉलमार्ट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, आइकिया, वॉलमार्ट में जब जाएंगे उनके जो काउंटर्स पे जो सेल्समैन होते हैं वो ब्रांड पे प्रिंटर लगा रखते हैं, जब भी बिल हुआ स्कैन किया प्रिंट करके दे, इजी वे हाउ टू रिड्यूस द क्यू को कैसे कम किया जा सकता है कस्टमर। दूसरा टेस्ट हम करते हैं ड्रॉप टेस्ट। ये सभी ऑलमोस्ट जितने भी हमारे डेस्कटॉप प्रिंटर्स हैं, बिलिंग प्रिंटर्स के सारे होते हैं, क्योंकि कैश काउंटर से प्रिंटर गिर रहा है तो टूट रहा है तो उसका डैमेज कितना होने वाला है, कितने हाइट तक प्रिंटर रख के गिर सकता है तो उसका फिजिकल डैमेज ना हो। एक टेस्ट ये होता है। सो वी कॉल इट रिलायबिलिटी। किसी ने आप जो 6,000-7,000 का प्रिंटर आप लेते हो या स्टोर पर लगा रहे हो, किसी ने उसको ओपन करके देखा है, बोला अंदर से क्या है, किसी ने खोल के देखा? तो एप्सन का जो प्रिंटर है वो मेटल के साथ आज भी आता था, पहले भी आता था, और जो बाजू में जो प्रिंटर्स लगा रखे हैं ये लो कॉस्ट प्रिंटर है, चाइनीज मेक वगैरह, ये इनके बोर्ड उनके प्लास्टिक पे होता है। एक बार यदि प्रिंटर गया तो टूटा, आपका मदरबोर्ड गया, फिर आपको फिर 7,000 रुपये डालने पड़ेंगे एक्सपेंशन जो आपका, क्योंकि आपको स्टोर तो चलाना है बिल प्रिंटर। तो किसी भी प्रिंटर्स में एप्सन के एंट्री लेवल्स पे इवन आप जाओगे तो भी एप्सन का सारा मैकेनिज्म पूरा स्टील बॉडी के ऊपर है, ऊपर से प्लास्टिक कवर किया है, लाइक का ट्रक का चेंजेस होता है या बस का चेंजेस होता है, सिमिलर है। तो एक रिलायबिलिटी है जो एक बेनिफिट लेता है लॉन्ग टर्म प्रिंटर यूज करने का। दूसरा जो मैं क्लेम कर रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वर्ल्ड वाइड, सारे सोलर पे है, 100% एनर्जी यूज होता है वो भी सोलर पे। We are not using any electricity power without using the government's own energy which we are producing through the solar. Any product, Epson के almost cost printer monthly we are producing almost 7 to 8 lakhs printer monthly. It's going global.
साढ़े 7 से 8 लाख प्रिंटर सोलर एनर्जी, सोलर पावर पे प्रोड्यूस हो रहा है। जब प्रिंटर यूज करते हैं, ये सेकंड पॉइंट है जो शायद आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट यदि आप रियली आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जाना चाह रहे हो बिजनेस टर्म्स में, तो पावर कंजप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आज की डेट में इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट पावर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसर ऑल्सो, जो कि अदर कंट्रीज को पावर दे रहे हैं। एप्सल प्रिंटर जब यूज होता है, दिस कंज्यूम ओनली 0.96 वाट रिसीव प्रिंटर पावर कंजप्शन। हाँ, I will not claim वो क्या है, but they are not mentioning also, तभी किसी का mention नहीं है, पर हमने जब ऑफिस में टेस्ट किया, it's suppose 2 और 2.5 something watt होगा पावर कंजप्शन, पर कोई भी क्लेम नहीं करेगा क्योंकि वो तो यूज एंड थ्रो है, आप जितना यूज कर सकते हो पर बाकी हम खरीद के दूसरा नहीं। तो ये हमने बताया कि कैसे स्ट्रक्चर हुआ है। एक प्लस पॉइंट है, आप सारे ब्रांड्स आपने यूज करें, पावर अडेप्टर आता है, एप्सन के प्रोडक्ट में पावर अडेप्टर नहीं आता, इट्स अ ऑन पोर्ट। एंट्री लेवल प्रोडक्ट में पावर अडेप्टर नहीं आता है, इट्स अ कॉस्ट फ्री। यदि आप कोई भी ब्रांड का पावर अडेप्टर लेते हैं कहीं भी फेलियर होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी इवन एप्सन भी होता है तो पावर अडेप्टर को वारंटी में कवर नहीं करता, दैट्स अ चार्ज। चाइनीज जो थर्ड क्लास का भी आप पावर अडेप्टर यूज करोगे तो आपको 500 से 600 रुपये तो देने ही पड़ेगा, दैट्स अ कॉस्ट। ये सब बेनिफिट्स बता रहा हूँ जो आपको जाने। दिस इज द रोल ऑफ दी माय टीम मेंबर विनोद्रा शेट्टी। ये बहुत सिंपल लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है, बट एक्चुअली इसका एक्चुअल बेनिफिट तो सान्विक विकास जी बता सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन फ्रॉम डॉस समबडी, अभी भी आप लोग कोई डॉस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बैकएंड पे, इवन सर आपको पुराना वर्जन भी डॉस पे ही है, राइट? नाउ इट्स गॉन टू द विंडोज आल्सो 11 क्लाउड, पीपल आर टॉकिंग। एप्सन स्टिल डॉस को लेके आज भी डॉस के ड्राइवर्स से लेके विंडोज 11 तक क्लाउड तक के ड्राइवर्स वी आर सपोर्टिंग अक्रॉस ग्लोबल। उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट, एसडीके, वी नेवर चार्ज टू एनीवन, नॉट कस्टमर ना पार्टनर्स, वी जस्ट गिव एज अ फैसिलिटी फॉर द पार्टनर्स एज वेल एज कस्टमर टू इंटीग्रेट दोस पार्ट्स। कहीं हेल्प लगता है, द टीम इज आल्सो रेडी टू विजिबल, हर लोकेशन में टीम है ग्लोबली, कुछ भी सपोर्ट लगता है वी आर ऑलवेज देयर। तो ये बेसिक कैटेगरीज है, तो हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, स्किप टाइम, बट वी हैव द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम एंट्री टू हायर एंड प्रोडक्ट। तो अभी चेक करते हैं, ऑपरेशन कॉस्ट की बात करी, राइट? फायदा क्या देगा मॉनेटरी टर्म्स में? सभी ने बताया कि मॉनेटरी टर्म्स में कोई फायदा नहीं है, राइट? पर मैं बोलता हूँ है, इट्स हेल्प यू द कॉस्ट सेविंग। विनोद, कैन यू ओपन द एक्सेल शीट? किसके स्टोर में सबसे ज्यादा प्रिंटर है अपार्ट फ्रॉम पटेल रिटेल? पटेल रिटेल तो वेरी पॉपुलर ब्रांड, उसके बाद 4-5 प्रिंटर्स हैं। तो हम एक छोटे केस से जाते हैं, बड़े केस से जाते हैं, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, पर कुछ इंटरेस्टिंग है। तो छोटे केस में हम जाते हैं 5 प्रिंटर्स। सपोज आपके स्टोर में पर स्टोर में 5 प्रिंटर लगा, 5 रोल्स पर डे, प्रिंटर पर रोल पर डे। सपोज एक प्रिंटर पे आपके 2 रोल का कंजप्शन हो रहा है, तो 2 रोल लगते हैं, तो 5 प्रिंटर में आपके 10 रोल लगते हैं। 10 रोल लगने के बाद आपने मान के चले कि हमने वर्किंग मंथ हमने किया है 250 दिन हमने काम किया, साल में 365 दिन होते हैं, पर हम 250 डेज ही काम किए, बाकी के दिन हमने छुट्टी मनाई। 250 डेज काम करने के बाद 12 जो महीने होते हैं, मतलब रोल पर ईयर आपका खर्च कितने रोल लग रहे हैं? 3000। यहाँ तक करेक्ट है? 3000 रोल लग रहे हैं। एनुअल कॉस्ट 40 रुपए, इसको इससे ऊपर कोई खरीद रहा है कि इससे नीचे भी कोई खरीद रहा है, पर मोटा मोटा 40 रुपए पर रोल आपको मार्केट में मिलता है। इसके नीचे कोई दे रहा है 30, 35, 25 रुपए मिल रहा। तो एवरेज प्राइस 40 रुपए लेते हैं। यदि आप पीछे आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्सो प्रिंट करा तो 40 रुपीज का मार्केट में अवेलेबल है। तो जब 40 रुपए का रोल लगाते हो तो ये आपका खर्चा है 1,20,000 रुपए का पेपर पे। पेपर प्रिंटर कॉस्ट है 35,000 रुपीज। जो आपने 5 प्रिंटर खरीदे 7,000 रुपये पकड़ा है, 5 प्रिंटर आपने लगाए तो 35,000 रुपये खर्चा। तो टोटल खर्चा आपका एक स्टोर के लिए साल भर का 1,55,000 रुपये।
अभी आप यदि एप्सन प्रिंटर यूज करते हो और ये फीचर है 30% सेविंग पेपर रिसिप्ट पे, तो आपका जो नेट सेविंग एक्सपेंडिचर है 21,000 का आप सेविंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंटर कॉस्ट भी पकड़ा है 12,000 रुपए, 84,000 रुपीज हमने प्रिंटर कॉस्ट लिया, प्रिंटर कॉस्ट 50,000 रुपीज, पेपर यूजेस आ रहे 84,000 और पेपर सेविंग हम कॉस्ट ले रहे हैं 30%। तो 30% आप पेपर सेविंग करते हो तो 2100 रोल रख रहे हो। 30% 2100 कैसे है? 3,000। जहाँ पे आप 3,000 रोल आप यूज कर रहे थे, वहाँ का उसका 30% आपने निकाला तो 2100 रोल्स आपका कंजप्शन है। 21,000 रुपीज आपका नेट सेविंग है 5 प्रिंटर। ये रिसिप्ट शायद हर डेस्क पे ये दी गई है, तो आप एक बार देखो, एक नॉर्मल रिसिप्ट प्रिंट किया है, एक नॉर्मल रिसिप्ट है, फिर एक 30% में 2100 रुपए। अभी हम थोड़ा सा ज्यादा प्रिंटर डाल कर देखते हैं, जितना मंदिर केस स्टडी में पढ़ रहे हो, हम 50 प्रिंटर्स ले लेते हैं। तो 50 प्रिंटर्स यदि कोई अपने स्टोर्स में यूज कर रहा है, उसका कंजप्शन ऑलमोस्ट 2,10,000 रुपए बचा रहा है एप्सन में। एक सिनेरियो ये हो गया 2,10,000 रुपए। एप्सन प्रिंटर सस्ता है अभी भी, आप देख लो 7,000 का प्रिंटर खरीद रहे हो, वहां पे आप कितना स्पेंड कर रहे हो। 12,000 का प्रिंटर खरीदने के बावजूद भी आप सस्ते में ले रहे हो यदि आप ये फीचर यूज करो। चलो मान लिया आपको ये यूज ही नहीं करना, हमने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंटल से, हमें बहुत पैसा खर्च करना, हमें यूज नहीं करना। एक और एग्जांपल देते हैं, 12 या 13,000 रुपए में आप ऑप्शन 2 में 5 साल वारंटी के साथ चले जाओ। सेकंड सिनेरियो कैन यू मेंशन कि प्रिंटर कॉस्ट 12,000 रुपीस, इसमें ऑप्शन 2 डाउन 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 एक्सेल ऑप्शन 12,000 वारंटी 5 रुपीस फॉर 5 इयर्स। टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं है 365। 365 डेज पर ईयर में यदि हम आप 12,000 में आप 5 इयर्स वारंटी आप एप्सन कर लेते हो, जो इजीली अवेलेबल है, आप कैन बाय फ्रॉम द लोकल मार्केट आल्सो, तो आपको ईएमसी कॉस्ट करके देते हैं 7 रुपीस पर डे आपका प्रिंटर कॉस्ट 5 इयर्स। ये तो रेस्टोरेंट तो है नहीं है कि आप 6 महीने चला के देखेंगे, चला तो दिन बंद कर देंगे। इन्वेस्टमेंट है 2-2.5 करोड़ का, सुपर मार्केट स्टॉक रखना है, एटलीस्ट 5-10 साल तो एटलीस्ट मेंटेन करो। 5 साल तक एप्सन में टेक केयर ऑफ दैट वारंटी, पावर रेट में कोई खर्चा नहीं, 7 रुपए वारंटी इंक्लूड हेड कटर, हैंडल कटर 7 रुपीस पर डे। सपोज आपने तो भी 7,000 रुपीज लिया तो, और साल भर भी प्रिंटर चलाया, दूसरा खरीदा 1 साल बाद, 3 साल में भी, 5 साल में भी आपने 2 प्रिंटर खरीदे, तो भी आपने 14,000 रुपये दिए, तो भी महंगे दिए। एप्सन इज ऑलवेज चीपर, इकोनॉमिकल, रगेड प्रिंटर हमेशा पहले से रहा है और अभी तक रहा। आई थिंक 1990s में जब फर्स्ट प्रिंटर आया था तो 80-90 हज़ार का प्रिंटर चालू हुआ, उस टाइम भी एप्सन थर्मल प्रिंटर सस्ता था, नॉट सेम प्राइस बट नहीं हमें कुछ नहीं पड़ रहा था, हम कहाँ से लूटेंगे। तो ये एक थर्मल प्रिंटर का एक कॉस्ट है, मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप एप्सन लो या मत लो, मैं ये बता रहा हूँ कि एक थर्मल प्रिंटर भी आपको वैल्यूएशन दे सकता है कि राइट प्रोडक्ट चूज करो। एप्सन पे नहीं जाना, तो देयर मोर ब्रांड्स आर देयर जो एप्सन के लेवल पे और उससे ऊपर है। स्टार माइक्रोनिक्स है, एक्सप्लोन है, यू कैन गो विद ज़ीब्रा, यू कैन गो। ये कंट्री के हिसाब से गवर्नमेंट के लिए भी बने हुए हैं। चाइनीज प्रिंटर और एनी अदर लो कॉस्ट प्रिंटर इज अ डंपिंग जोन, इंडिया इज अ डंपिंग जोन फॉर देम। डंप करो निकलो, उसका प्लास्टिक रिसाइकल भी नहीं होगा। तो ग्लोबली यदि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली अपनी कंट्री के लिए भी कुछ सोच रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जो आपको आपके बिजनेस में आपके एनवायरमेंटल को फ्रेंडली हो। सो परफॉर्मेंस वीडियो बता दे स्पीड। एक रिसीप्ट प्रिंट करने के लिए
एक बार और प्ले कर 0.9 सेकंड। आपके लाइन आइटम ज्यादा होते हैं, इसलिए हाई रिस्क फिल्टर आपको बहुत जरूरी है क्यों रिड्यूस करने के लिए। रेस्टोरेंट्स में चल जाएगा कि लो बिलिंग, बट स्पेशली सुपरमार्केट जहाँ पे क्यू लाइन ऑफ आइटम ज्यादा होते हैं वहाँ पे स्पीड और रैपिडनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 10 इयर्स क्या है? 10 इयर्स वारंटी में 5 साल 3 साल बोल रहा हूँ। व्हाट इज 10 इयर्स? 10 years while we are claiming is कोई भी प्रोडक्ट जो एप्सन ने बनाया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कंपनी का मानना ऐसा है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में 10 साल तक का सपोर्ट इसमें होना चाहिए। इन केस ऑफ द वारंटी पीरियड इसका खत्म हो जाता है तो प्रोडक्ट लाइफ 10 साल तक तो उसकी होनी चाहिए और 10 साल तक भी सपोर्ट हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट यदि हमने आज लॉन्च किया, 5 साल बाद उसकी साइकिल खत्म हो रही है, EOL हो गया, एंड ऑफ लाइफ हो गया, तो उसको सर्विस कब तक दिया जाएगा? तो नेक्स्ट 5 इयर्स और रहेगा। तो टोटल प्रोडक्ट लॉन्च से 10 साल तक का प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस स्पेयर पार्ट्स विल बी अवेलेबल। वो कंपनी का। दूसरा एक पॉइंट ये बता रहा हूँ कि सर्विस कॉस्ट 1% टू 1.5% पर ईयर, ये हमारा सर्विस कॉल है, जिसमें से 80% हमारा नो पार्ट कॉल है। ये डेटा बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। मतलब जो भी इंजीनियर जा रहा है, इंस्टॉलेशन करता है, कंप्लेन आता है, आप ही लोग जब कंप्लेन लॉक करते हो, उसका मैं बता रहा हूँ कि 80% जो कॉल है वो विदाउट पार्ट कॉल, मतलब कोई भी पार्ट कॉल का कंप्लेन नहीं है उसमें। प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल एरर्स हैं, केबल खराब हो गया, केबल टूट गया, कुछ भी, तो उसमें ना पार्ट्स रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है। बाकी का 20% आता है पार्ट रिप्लेसमेंट है कि किसी मदरबोर्ड टूट गया है, चूहे ने वायर काट दिया, बोर्ड का वायर टूट गया, डैमेज हो गया, तो पार्ट रिप्लेस ही करना है। तो 20% कॉल्स है, बट कॉल्स है। मैं बोलूँगा 100% सर्विस फ्री वो है नहीं। इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फेलियर है हमेशा रहेगा और फेलियर होना भी चाहिए। अदरवाइज आप हमें ऊपर गाली नहीं दोगे, हम आपकी गाली नहीं सुनेंगे, हम इंजीनियर नहीं भेजेंगे, रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने के लिए भी सर्विस शुरू होना जरूरी है। सो अभी तक हमने एप्सन के बात की। इंडिया में we started from one service center 25 years ago. तो आज एप्सन इंडिया को 25 years हो गया है। एक सर्विस सेंटर से हमने चालू किया था। Today we are at 430 plus service center across the India, 17 offices across the India, plus 400 plus employees are there who are directly working on the field on the Epson project. So now gradually we are also growing, especially in India as well as the worldwide. अच्छा, एक चीज मैं इम्पोर्टेंट चीज भूल गया। सबसे बड़ा हैक्टिक है, आपको प्रॉब्लम है आपको कॉल लॉक करना, कि आप लोग बिजनेस देखोगे तो कॉल लॉक करके बैठे, राइट? टोल फ्री नंबर की हैबिट है, टोल फ्री नंबर पे लगाना है। टोल फ्री नंबर वेट लिस्ट में आता है, आपका कॉल महत्वपूर्ण है, कृपया वेट करें, हम तो रिस्पॉन्स करेंगे। आप बता रहे हो और आप हमारे महत्वपूर्ण कस्टमर हैं, ठीक है? तो ये तो है, ये तो कंटिन्यू है, ये तो नेचर है। इसके अलावा एप्सन ने अडॉप्टेड की SMS सर्विस, व्हाट्सएप सर्विस। यदि आपको 2-3 सेकंड का टाइम है, प्रिंटर का जो सीरियल नंबर है उसको फोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर दो, एड्रेस दे दो, पिन कोड, विद इन 3 to 4 आवर्स में कॉल लॉग होके आपको इंजीनियर असाइन हो जाएगा। ठीक है? जब तक प्रिंटर वारंटी में है, 3 साल 5 साल 1 साल, वो भी ऑन साइट फ्री रहेगा। इन केस ऑफ कोई फायर या डैमेज नहीं हुआ, या किसी ने कस्टमर को उसमें फाइट हो गया, प्रिंटर उड़ा के मार दिया, प्रिंटर उसको तो कुछ भी प्रिंटर टूट जाएगा। तो एनी फिजिकल डैमेज और वो नहीं है, तो ऑन साइट वारंटी सपोर्ट है, देयर विल बी नो चार्ज जब तक वारंटी में है। आउट ऑफ वारंटी केसेस में इट्स लाइक अ मारुति, कोई भी थर्ड पार्टी वाला प्रिंटर सुधार देता है, नहीं है सर्विस सेंटर, तो आई थिंक 300 to 400 रुपीज दे विल चार्ज फॉर सर्विस सेंटर्स और विजिटिंग का, और पार्ट रिप्लेसमेंट हुआ तो पार्ट कॉस्ट पर। इन केस में आपका वारंटी खत्म हो रहा है, आपको पता है कि ये वारंटी खत्म हो रहा है, तो एप्सन का बेनिफिट है, आप EMC भी करा सकते हैं डायरेक्टली कंपनी से। आप वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं कि मुझे EMC चाहिए, या आपकी जो वेंडर जो सप्लायर है, डिपेंड करता है। यदि आपने जैसे प्रिंटर खरीदा, जैसे हमारे पास एंट्री लेवल जो प्रिंटर है वो स्टैंडर्ड 3 इयर्स है, प्रिंटर स्टैंडर्ड। उसके बाद आप EMC ले सकते हो, जैसे आप
पीरियड है, जैसे विद इन 90 डेज में परचेज से 90 डेज के अंदर लेते हो सर, वो कॉस्ट पड़ता है 1000-1200 रुपये, कोई साल एक्सटेंड करने 10% ऑफ एडवांस। अब आप समझ गए कि आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग ऑन दैट, वरना हमारा तो 10% ही है। एक लास्ट जस्ट 2 मिनट्स मोर, सो देयर इज अ न्यू एंट्री लेवल प्रोडक्ट वी हैव लॉन्च। कस्टमर्स को बहुत कंप्लेंट था कि आपके पास यूएसबी लैन, ये तो डुअल पोर्ट नहीं है, डुअल पोर्ट नहीं है, हमें डुअल पोर्ट यूज करना है। तो दिस इज अ बेनिफिट दैट एप्सन हैव लॉन्च्ड विद यूएसबी प्लस लैन। यदि किसी का यूएसबी पोर्ट खराब हुआ तो लैन में स्विच हो सकता है। इन मीन टाइम में मेरा एक क्वेश्चन है जो टेबल पे सबको रिसीव दिया है, किसी ने रिसीव को ऑब्जर्व किया है क्या? नहीं, शॉर्ट तो है और क्या ऑब्जर्वेशन दिया उसमें? कुछ तो ऑब्जर्वेशन होगा। Yes. Anyone? Yes. Sir rightly said. Without changing any font, ना तो हमने फॉन्ट का साइज चेंज किया है, ना तो उसका बोल्डनेस चेंज किया है, ना ही हमने रिसीव का कोई भी लाइन आइटम डिलीट किया है। सब कुछ उसमें सेम है। हाइट रिड्यूस है, सिर्फ हाइट रिड्यूस किया है। कैसे रिड्यूस किया है? फॉन्ट छोटी नहीं, फॉन्ट छोटी। आप फर्स्ट रिसीप्ट देखोगे जो बड़ा वाला है, उसमें तो बहुत सारे अनवांटेड स्पेस है बीच बीच में लाइन आइटम के बाद। इसका हम क्यों पैसा पे कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इसका तो आप पैसा क्यों कर पे करो, आपको तो यूज में ही नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है प्रिंटर का, जो भी अनवांटेड स्पेस होता है उसको वो रिड्यूस करता है। तो कोई भी कस्टमर जब बिल लेता है वो एग्जिट के लिए लेता है, अपना लाइन आइटम मिला है वो आप ही के डस्टबिन में फेंक देता है। 100 में से 10% कस्टमर होंगे जो घर तक लेके जाए, बाकी 90% लोग बिल को थ्रो कर देते हैं, सिर्फ एग्जिट तक वो लाइन आइटम चेक करते हैं। यही पर्पस। तो जब एक फीचर विदाउट चेंजिंग एनी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन आपको सिस्टम को बिना हिलाए अब सिर्फ प्रिंटर में थोड़ा चेंजेस करके आप वो बेनिफिट ले सकते हो, तो 4-5 लाख रुपए बचाने में कोई फायदा नुकसान तो है नहीं। आप कर सकते हो, बस आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप ही के कंपटीशन में ही बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उन्होंने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी थी 2017 में। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, बट मैं नेम देता हूँ ओपनली। इट्स अ डीमार्ट इज देयर, रॉयल मार्ट इन बैंगलोर, बिगेस्ट चेन इज देयर इन रॉयल मार्ट, डीमार्ट इज देयर, वी-मार्ट is there in Delhi. So D-Mart was using almost, they are spending 1.2 crores approximately on the paper. आज देता है एप्सन सिर्फ वो 30% सेव कर रहा है उसको। तो 1.2 करोड़ का जो पेपर पे वो दे रहे हैं उसका 30% में उनको एप्सन प्रिंटर ऑलमोस्ट फ्री में मिल जा रहा है। रॉयल मार्ट was spending 50 lakh rupees on the rolls. वो है खर्चा सर, आप मानो या मानो पेपर का तो खर्चा है बिल जनरेट करना। और पीपल विल से हम ई-इनवॉइसिंग में आ जाएंगे, कुछ भी आप कितना भी कुछ करो, इंडिया में ई-इनवॉइसिंग विल बी नेवर सक्सेसफुल, कभी नहीं। हमारा मत लो आप, मैं तो आप लोग ओपनली बोल रहा हूँ सर। आप ट्राई करके देखो ना, तो कितना आप ट्राई तो करके देखिए, कितनों ने ट्राई किया है यहाँ कभी बिल देना पड़ रहा है ना। आज बिल मत रखिए प्रिंटर, मैं एज अ कस्टमर आई एम स्टैंडिंग इन योर काउंटर, आई विल आस्क गिव मी द बिल, आपको देना पड़ेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। एक दूसरा कॉन्ट्राडिक्टी है, अगर आप एनवायरनमेंट का बात सेव कर रहे हो तो पेपर भी तो कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान करके एक रहेगा, तो उसको हटा दो ना। पेपर तो हम वही चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर वाला चाह रहे हैं कि भाई आप पेपर को पूरा ही आउट कर दो तो कर सकते हैं। Basically what he is saying कि पेपर इज डिग्रेडेबल, सो अगर एनवायरनमेंट को कॉज कर रहा है तो कहीं ना कहीं पेड़ उग रहा है, पेपर कैन डिग्रेड एंड रीजनरेट through trees, so it's a cycle. But when it comes to plastic, it's not a cycle, like plastic is not degradable. See, आपने एक क्वेश्चन पूछा, 18 पैसे में होता है यूटिलिटी, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यूटिलिटी 18 पैसे में, इसका कॉस्ट कितना है? वो भी उतना ही पड़ेगा, आपका 12-15 पैसा हो जाता है ना।
सी आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ पेपर का। आज की डेट में गवर्नमेंट, किसी ने आर्टिकल पढ़ा होगा 2003 और सम कंडीशन है कि ये परसेंटेज ऑफ दी होना चाहिए। आप अपने वेंडर से पूछना क्या वो बीपीए फ्री या पेपर बनाना चालू किया और नहीं, दे स्टार्टेड, कॉस्टली है वो। तो क्यों गवर्नमेंट ने किया है कि जितने भी थर्मल पेपर जो होते हैं दैट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, अभी तक हम हो रहे थे, तो दे वांट अ पेपर एनवायरमेंटल फ्री। तो गवर्नमेंट का भी पता है। E-billing is a good concept. Alternate options are there, but it cannot be replaced. China has implemented e-invoice 5 साल 7 साल पहले। 7 साल पहले उनका कंजप्शन तब भी 1.5 लाख प्रिंटर था कैश काउंटर्स पे, आज भी 1.5 लाख प्रिंटर ही है। Anybody have visited China in last 5 years में आप चेक कर लेना तो इंडिया से ऑलमोस्ट 100 साल आगे, 100 साल, मैं 5 साल भी नहीं बोलूँगा, इंडिया से आज की डेट में चाइना 100 साल आगे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ई इनवॉइसिंग आज से 7-8 साल पहले यूज किया था, तब भी 1.5 से 2 लाख प्रिंटर यूज करते थे, अभी भी करते, अभी तो कंजप्शन बढ़ गया होगा, तो अभी भी वही यूज करते हैं। इट्स अ अल्टरनेट बेनिफिट कस्टमर है। यस सॉफ्ट कॉपी भी है तो यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप 58, 80 mm दोनों में आप यूज करेंगे। 58 का सही अभी तो नहीं होगा, पर हम प्रिंटर हम शायद उसको करके दिखा देंगे। उसमें ना सेपरेटर डलता है बीच में, प्रिंटर के अंदर आता है, आप उसको पुश कर दीजिए तो 58 mm का डाल सकते हैं। मेरे साथ लास्ट स्लाइड यही है, क्वेश्चन एंड आंसर ओपन फोरम में यू कैन शूट जो भी क्वेरीज है, जो ऑलरेडी यूज कर रहा है, जो सर्विस इश्यूज हो रहा है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, जो नहीं यूज कर रहा है उसकी कोई बात ही नहीं है। एनीवे अपने सॉफ्टवेयर में निकलेगा क्या प्रिंट का छोटा? अपने सॉफ्टवेयर में नहीं निकलता इतना छोटा प्रिंट। अपने सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, प्रिंटर का काम है। ट्राई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को जानते हैं, हमारे प्रिंटर से तो आता है, वैसा बोलते हो। इसलिए 5 सालों से 7 सालों से नहीं निकलता। तो डेवलपमेंट टीम बैठा है जो प्रिंटर निकलेगा तो सॉफ्टवेयर से भी निकलेगा। इसमें तो कहीं नहीं है, लॉस कमानी है ना, अपने बाहर से उसको रिड्यूस करें। इसमें सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है, अगले साल एवरीथिंग में लगा है। प्रिंटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का रोल है क्योंकि अभी भी नॉर्मल प्रिंटिंग देते हैं। सी प्रिंटर सपोर्ट टेक्स्ट प्रिंटिंग। सी दो चीजें होती हैं, पेपर साइज रिड्यूस कर, आप मैं एक अपना एक पीडीएफ डिजाइन करता हूँ, एक पीडीएफ फोटो डिजाइन हो गया, फोटो को आप कितना भी क्रॉप कर लो, जो एक बार फिक्स हो गया तो हो गया पीडीएफ कैन नॉट बी रिड्यूस द स्पेस, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। पर वही टेक्स्ट प्रिंटिंग यदि होता है